ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો. ધોરણ 12 યુનિટ 2 એમાં રીડ 1 એના યુનિટનું નામ છે અનફોરગોટેબલ વોલ્ટ ડિઝની. નામ તમે સાંભળ્યું હશે. અનફોરગોટેબલ એટલે ક્યારેય ભૂલી ન શકાય તેવું. હે ને? આ નામ તમે સાંભળ્યું, વોલ્ટ ડિઝની. ક્યારેય નામ જોયું? ખૂબ સરસ યુનિટ છે, મજા આવે એવું છે, રસપ્રદ છે. અને તમને હું યાદ અપાવું કે તમે બધા એનાથી વાકેફ છે. મિકી માઉસ, હે ને? જોયું ને મિકી? એના આધારે આખું યુનિટ છે. તો આપણે એનો એક નાનકડો હું તમને એક વિડીયો બતાવીશ કે એની આખી સ્ટોરી તમને એમાં આવી જશે. અને એના સ્પેલિંગ જો હું તમને ફરીથી યાદ કરાવું કે પાઠના સ્પેલિંગ કરજો, નહીં તો યુનિટ સમજાશે નહીં. એટલે એ જરૂરી છે કે પાઠના સ્પેલિંગ કરવા. તો પહેલાં આપણે ગ્લોસરી જોઈ લઈએ, એના સ્પેલિંગ સમજી લઈએ, અને પછી હું તમને એક જે નાનકડો વિડીયો બતાવું એ જોઈ લઈએ. ત્યારબાદ આપણે પાઠને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. જો પહેલો સ્પેલિંગ છે લિન્જર્સ. તમે જોઈ શકો, ફર્સ્ટ સ્પેલિંગ છે લિન્જર્સ. લિન્જર્સ એટલે ના, આપણે કોઈ સ્પ્રે ચાટ્યો હોય તો લાંબા સમય સુધી એની સુગંધ રહી, એને લિન્જર્સ કહેવાય. લાંબો સમય સુધી ટકી રહેવું, ધેટ ઇઝ લિન્જર્સ. સેકન્ડ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયસ. એટલે હાર્ડ વર્કિંગ, સખત મહેનતું, એને ઇન્ડસ્ટ્રીયસ કહી શકીએ આપણે. થર્ડ છે ગ્લુમી એટલે કંઈક તમે ચિંતામાં હો, કંઈક વિચારોમાં મગ્ન હો, એને ગ્લુમી કહેવાય. પછી હેલબેન્ટ એટલે જો સમજો, ડિટરમાઇન્ડ ટુ અચીવ સમથિંગ એટ ઓલ કોસ્ટ. હેલબેન્ટ એટલે વળગી રહેવું, કોઈ પણ ભોગે, ગમે તે ભોગે જે નક્કી કરેલું છે એ કરીને જ રહેવું, એને હેલબેન્ટ કહેવાય. પછી બેંકરપ્સી એટલે બેંકમાંથી દેવાળું ફૂંકી નાખે, બેંકની લોન ના ભરે, અને એને બેંકરપ્સી કહેવાય. ઓર્ચાર્ડ એટલે એક છોડનું નામ છે, એક છોડ વૃક્ષનું. વિલો, અ ટ્રી, એ પણ એક ઝાડનું. એપલ ઓર્ચાર્ડ અને વીપિંગ વિલો, એ બે તમારા માટે એક યુનિટ એ ઝાડના નામે એમાં આવશે. સ્નગલ મીન્સ વેરી ક્લોઝ ટુ સમબડી, કોઈકની એકદમ નજીક હોઈએ આપણે, વી આર ક્લોઝ ફ્રેન્ડ, કે આપણે નજીકના મિત્રો છીએ, ખૂબ જ ગાઢ મિત્રો છીએ, એટલે સ્નગલ. ગેટ ક્લોઝ ટુ સમબડી, એકદમ નજીક એમ. નિકલ એટલે એક ચલણનું નામ છે, 5 સેન્ટ કોઈન, સિક્કો એક. ફ્લોપ એટલે ફ્લોપ થઈ ગયા. આપણે નથી કહેતા કે આ કોઈ પિક્ચર છે એ ફ્લોપ થઈ ગયું છે. ફ્લોપ મતલબ કે ફેલ, કમ્પ્લીટલી ફેલ, ધેટ ઇઝ ફ્લોપ. ક્રેન્ક્ડ, ગેવ અ બેન્ડ ટુ, કે એના માટે કંઈક વળગી રહેવું, ક્રેન્ક. સ્પ્લેશ, પ્રોમિનન્ટ ન્યૂઝ ફીચર ઓર અ સ્ટોરી, એટલે કે એવી કોઈ શું કહેવાય કે નવીન કંઈક, નવા પાસા ધરાવતી કંઈક નવીન, કંઈક અલગ જ કરવું, એને સ્પ્લેશ કહીએ. એન્થુઝડ એટલે કે એકદમ ઉત્સાહી, એન્થુઝિયાઝમ. વર્ચ્યુઓસો, અપવાદરૂપ, જીનિયસ. વર્ચ્યુઓસો એટલે એકદમ સદગુણી. રિવાઇટેડ એટલે ફેસિનેટેડ, આમ આપણને આંજી નાખે એવું, આપણે જેનાથી આપણે એવું કહી શકીએ કે જેનાથી આપણે મંત્રમુગ્ધ થઈ જઈએ, મેસ્મરાઇઝ થઈ જઈએ એવું. ટ્વિસ્ટ એટલે કે આપણે ઝટકો લાગે, કંઈક આમ નવાઈ લાગે એમ. વ્હીલ મીન્સ કે નો રિવોલ્વિંગ ચેર હોય ને, જેમાં તમે ચેન્જ થાવ, આમ ખુરશીનામાં ફેરવો, ધેટ ઇઝ વ્હીલ. મૂવ ચેર. ડિસન્ટ એટલે ઓપોઝિશન. ગ્રીન મીન્સ ગુસ્સે થવું. સ્માઇલ બ્રોડલી ઇન ડિસ્પ્લેઝર, મતલબ ડિસ્પ્લેઝર એટલે દુઃખી થઈને. સ્ટબન એટલે જિદ્દી, ઓબ્સ્ટિનેટ મતલબ કે જિદ્દી. પોટપોરી એટલે એક પ્રકારનો સંગ્રહ. કન્ઝર્ટ કરવું એટલે ક્રિએટ, કંઈક સર્જન કરવું. પ્રીપોસ્ટરિયસ એટલે અણઘડ, મેળ વગરનું, કંઈ
બંધ બેસતું ન હોય તેવું, એને એબ્સર્ડ કહી શકીએ. અબાઉટ ફેસ એટલે સડન કમ્પ્લીટ ચેન્જ, અચાનક જ પૂરેપૂરો કંઈ ચેન્જ આવી જાય. એક્સ્ટ્રાવેગન્સ એટલે વધારે પડતો ખર્ચો કરવો. વેસ્ટફુલનેસ એટલે કે આપણે નથી કહેતા લક્ઝરિયસ લાઈફ જીવતા હોય કે આનંદિત જીવન જીવતા હોય, ધેટ ઇઝ વેસ્ટફુલનેસ. આટલા સ્પેલિંગ ગ્લોસરીના છે. એ સિવાય તમે પાઠ વાંચી લ્યો પહેલાં તમારી રીતે, પછી એમાં સ્પેલિંગ ન સમજાય એને ડિક્શનરીમાંથી શોધી લ્યો અને પછી તમે યુનિટને સમજવાની કોશિશ કરો. આ યુનિટની એક આખી સ્ટોરી મેં શોધેલી છે યુટ્યુબ ઉપરથી, એ હું અત્યારે તમને આમાં બતાવું છું. એ જોઈ અને પછી આપણે યુનિટને સમજવાની કોશિશ કરીશું. મિત્રો, અને પહેલાં સમજજો, વ્યવસ્થિત જોજો, એના આધારે જ આખી સ્ટોરી છે જે તમને સમજાઈ જશે. હું માનું ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિત રીતે તમને સમજાશે. ઓકે, તો હવે આપણે એ જોઈએ, આપણે એ સ્ટોરી કે જે શું કહેવા માગે છે એની આખી બાયોગ્રાફી ટૂંક તમને 10 મિનિટના વિડીયોમાં તમે જોઈ શકશો. आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे. आधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे. दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे कलाकार की जिसने अपने अद्भुत इमेजिनेशन से दुनिया के अनगिनत बच्चों के बचपन में खुशियां बिखेरी हैं. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस जैसे बहुत सारे फेमस कार्टून के जन्मदाता वॉल्ट डिज्नी की, जिन्हें एनिमेशन फिल्मों में उनके योगदान के लिए 22 बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है. उनके द्वारा बनाई गई कंपनी द वॉल्ट डिज्नी कंपनी आज दुनिया के टॉप मीडिया कंपनीज में शामिल है और अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करती है. लेकिन दोस्तों, डिज्नी ने जिन संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल किया था, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा यह किसी और के बस की बात होगी. तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम वॉल्ट डिज्नी के प्रेरणादायक जीवन को शुरू से जानते हैं. वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 सितंबर 1901 को अमेरिका के इलिनोइस राज्य में हेरमोसा नाम की जगह पर हुआ था. उनके पिता का नाम एलियास डिज्नी था, जो एक किसान थे और साथ ही साथ बढ़ई का भी काम करते थे. लेकिन आगे चलकर इन सभी कामों से गुजारा न हो पाने की वजह से उन्होंने बाजार में फल बेचने का भी काम किया. हालांकि अलग अलग काम करने के बावजूद भी उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि उनका पूरा परिवार अच्छे से गुजारा कर सके और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके. इसीलिए उन्होंने अपना खेत बेच दिया और 1906 में एक छोटे से गांव मार्सलेन मिसौरी में आकर बस गए, जहां पर वॉल्ट के अंकल की जमीन पहले से थी. वॉल्ट के अलावा उनके 3 भाई और एक छोटी बहन भी थी. और अगर ड्राइंग की बात करें तो उन्हें शुरू से ड्राइंग करना बहुत पसंद था. वे फर्श और दीवारों पर कुछ न कुछ बनाते रहते थे. एक बार तो उन्होंने अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर तारकोल से अपने घर की दीवार पर पेंटिंग बना डाली और पूरा दीवार काला हो गया, जिससे उन्हें अपने पिता से बहुत डांट सुननी पड़ी थी. डिज्नी ने 7 साल की उम्र में अपने पड़ोसी के घोड़ों की ड्राइंग बनाई और वह उनके पड़ोसी को इतना पसंद आया कि उन्होंने उस ड्राइंग को पैसे देकर खरीद लिया. और इस तरह ये वॉल्ट डिज्नी के जीवन की पहली कमाई थी. अगर बात की जाए वॉल्ट डिज्नी के सबसे करीबी की, तो वो उनके भाई रॉय थे, जिसके साथ वो अपना पूरा समय बिताते थे. 1909 के लास्ट में वॉल्ट डिज्नी का एडमिशन पास के एक स्कूल में करवाया गया, लेकिन उनका परिवार पैसों की दिक्कत की वजह से उस गांव में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका और फिर वे 1911 में आर्थिक तंगी झेलते हुए कंसास नाम की एक शहर में रहने आ गए, जहां वॉल्ट के पिता को आखिरकार न्यूज़पेपर और मैगजीन बांटने का काम मिल गया. और कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वॉल्ट का एडमिशन बेंटन ग्रामर स्कूल में करवा दिया. लेकिन न्यूज़पेपर ज्यादा होने की वजह से वॉल्ट और उनके भाई रॉय को अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था और रोज सुबह 4:30 बजे उठकर
कड़ाके की ठंड में पेपर बांटने जाना होता था। पेपर बांटने के बाद वे स्कूल चले जाते थे और फिर शाम को स्कूल से वापस आने के बाद फिर से मैगजीन बांटने निकल जाया करते थे। वॉल्ट और रॉय इन सभी कामों से इतना थक जाते थे कि स्कूल की क्लास में ही वो सो जाते और इसीलिए वह अपनी क्लास के सबसे कमजोर स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। लेकिन इतने कठिनाई भरे दिनों में भी वॉल्ट ने ड्राइंग से कंप्रोमाइज कभी भी नहीं किया और उन्हें जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता वह मैगजीन के कवर को देखकर या फिर अपने दिमाग में कुछ भी सोचकर ड्राइंग करने लगते थे। वॉल्ट अक्सर अपने घर के पास के एक सलून में जाकर ड्राइंग बनाया करते थे और उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी होती थी कि सलून का मालिक उनकी ड्राइंग के बदले में मुफ्त में उनके बाल काटता था और जब कभी बाल कटवाने की जरूरत नहीं होती थी तो पैसे भी देता था। लेकिन वॉल्ट उन ड्राइंग्स को पैसे की लालच में नहीं बनाते थे, बल्कि इसलिए बनाते थे क्योंकि सलून का मालिक उनकी ड्राइंग को अपनी दीवार पर फ्रेम करवा के लगा देता था और बहुत सारे लोग उनकी ड्राइंग्स को देखकर उन्हें शाबाशी देते थे, जिससे डिज्नी को दिल से खुशी मिलती थी और उनका मनोबल बढ़ता था। दोस्तों, डिज्नी को वो दिन भी देखने पड़े जब उन्होंने ट्रेनों में जा जाकर पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें भी बेची और इस तरह के बहुत सारे काम करते हुए कुछ पैसे कलेक्ट करने के बाद डिज्नी ने कंसास सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में आर्ट की वीकेंड क्लासेस लेनी शुरू कर दी। आगे भी कुछ सालों तक यूं ही संघर्ष और पढ़ाई चलती रही और फिर 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद डिज्नी ने अमेरिकी सेना में जाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और फिर उन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ को बदलकर रेड क्रॉस में एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जहां उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और उनकी पोस्टिंग फ्रांस में कर दी गई। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी अभी तक बहुत सारे अलग अलग काम किए जा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा से आर्ट के फील्ड में कुछ कर गुजरने का जुनून था। वे अपने एम्बुलेंस तक को अपने आर्ट से सजा कर रखते थे। डिज्नी ने अक्टूबर 1919 में रेड क्रॉस को छोड़ दिया और फिर वापस अमेरिका आ गए क्योंकि उनकी जॉब पेमैन रूबिन कॉमर्शियल आर्ट स्टूडियो में एक आर्टिस्ट के तौर पर लग गई थी। लेकिन जनवरी 1920 में उन्हें उस जॉब से यह कहते हुए निकाल दिया गया कि उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, उनमें कल्पना शक्ति की कमी है और वे किसी भी खूबसूरत चीज का निर्माण कर ही नहीं सकते। लेकिन यह बात डिज्नी के दिल को ठेस कर गई थी क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन हर चीज से समझौता किया था, लेकिन अपने ड्राइंग से कभी भी समझौता नहीं किया। अपने इन्हीं अपमानों का बदला लेने के लिए वॉल्ट ने एक छोटी सी कंपनी खोली, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनकी कंपनी जल्दी दिवालिया हो गई। दोस्तों, डिज्नी के पास पॉकेट में केवल $20 और कागज के गत्ते का सूटकेस बचा था, जिसमें एक तरफ उनके कुछ कपड़े और दूसरी तरफ ड्राइंग बनाने के कुछ टूल्स रखे हुए थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपने प्रयासों को, अपनी कोशिशों को कभी भी नहीं छोड़ा और अपने भाई रॉय द्वारा बचाए गए $2000 की मदद से एक और कंपनी बनाई, जिसका नाम डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा और फिर बाद में इसका नाम बदलकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी कर दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डिज्नी ब्रदर्स द्वारा बनाई गई यह कंपनी बहुत ही जल्द चल पड़ी और फिर आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब पर भी रखा। अब वॉल्ट डिज्नी का जीवन काफी हद तक पटरी पर आ चुका था। उन्होंने जुलाई 1925 में लिलियन नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो उनकी कंपनी में बतौर आर्टिस्ट काम करती थी। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं उस कार्टून कैरेक्टर की जिसने वॉल्ट डिज्नी को शिखर पर पहुंचा दिया। 1928 में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाते समय ट्रेन में एक कागज पर वॉल्ट ने कुछ अजीबोगरीब कार्टून बनाना शुरू किया और अंत में उन्होंने एक चूहे के आकार का ड्राइंग बनाया, जिसका नाम उन्होंने अपने पत्नी के कहने पर मिकी दिया और फिर उस ड्राइंग का एनिमेशन बनाकर उन्होंने मिकी को अपना आवाज दिया।
18 नवंबर 1928 को वॉल्ट डिज्नी ने उस एनिमेशन का पहला शो मैनहट्टन में दिखाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिर उसके बाद से वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बेहतरीन एनिमेशन फिल्में इस दुनिया को दी। उन्होंने पूरी दुनिया से 950 से भी ज्यादा पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। इतना ही नहीं, इस फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर के लिए 59 बार उनका नॉमिनेशन किया गया, जिसमें 22 बार वे इसे जीतने में सफल रहे। आखिरकार इस दुनिया में एनिमेशन फिल्मों को एक नई ऊंचाई देने के बाद 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में किन्हीं मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल। जो मित्रों, તમે આ સ્ટોરી સાંભળી, વ્યવસ્થિત જોઈ હશે। જે અત્યારે તમારી સામે ચિત્ર છે એ પણ વોલ્ટ ડિઝનીનું અને મિકી માઉસ જે કાર્ટૂન કેરેક્ટર જે બધાથી ફેમસ છે એની આખી સ્ટોરી છે। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે યુનિટની શરૂઆત કરશું। યુનિટની પ્રી ટાસ્ક તરીકે યુનિટથી તમે ફેમિલિયર થઈ જાઓ એ હેતુથી તમને આ વિડીયો બતાવેલો હતો। તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પેન, બુક અને તમારી ટેક્સ્ટ બુક લઈ અને સાથે તૈયાર રહેજો, સ્પેલિંગ જોઈ લેજો અને નેક્સ્ટ વિડીયો આપણે એની સાથે ચર્ચા કરશું।